We have with us a very special guest today, TV and film actress Hina Khan. From playing Akshara, a popular Indian television character, to representing India at Cannes, Hina Khan has come a long way. A straightforward person, she has lived her life to the fullest, even after being diagnosed with cancer. She's been awarded with the Dada Saheb Phalke Excellence Award in 2018 for her outstanding performance in the TV industry and honored with more than 100 other prestigious titles from all over the country. Hina ji, a very warm welcome to you at the Art of Living International Center. Our other guest, Mr. Rocky Jaiswal, is an entrepreneur and Hina's partner. He has developed apps, established a real estate business and a clothing brand. The film Country of Blind, produced by his production house, was in the race for the Oscars in 2024, and its bound script is a part of the permanent collection of the Oscar Library. Mr. Jaiswal, a very warm welcome to you too at the Art of Living International Center. Gurudev, Hina ji would like to ask you a few questions. Yeah, sure. नमस्कार गुरुदेव, बहुत प्रसन्नता हो रही है आज आपके सामने आकर. वी आर डिलाइटेड, ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. गुरुदेव, आजकल हर चीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, और चॉइसेस आजकल फिलॉसफीज़ में भी हैं. एक सवाल आज भी जिंदा है, जो कि है या वेजिटेरियन बेटर है एज अ डाइट या नॉन वेजिटेरियन. गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि वेजिटेरियन इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियन, इसका कारण क्या है? क्या ये एक विजुअल एपरेटस के कारण है या एक नज़रिए का फ़र्क है? क्योंकि आखिर फल और सब्जियों में भी तो जान होती है, प्राण होता है, तभी वो हमें जीवनदायी शक्ति दे सकती हैं, और अगर नहीं होती तो फिर हम उनसे ऐसी शक्तियाँ कैसे पाते हैं? साथ ही साथ गुरुदेव, ऑन अ लाइटर नोट, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने कभी नॉनवेज ट्राई किया है? क्योंकि जिन्होंने तंदूरी चिकन खाया है उनको पता है कि उसे छोड़ना किसी त्याग से कम नहीं है. Lastly, in this question, I would ask you कि क्या त्याग जरूरी है साधना के लिए? This is my question, Gurudev. First question. Yeah. आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन था, आपने कभी टेस्ट किया? नहीं, हमने कभी उसका स्वाद नहीं लिया है. पर मैं ये कह रहा हूँ, आज पूरी दुनिया वीगन डाइट के तरफ जा रही है, और एक नहीं, हजारों शोध काम हुआ है रिसर्च के आधार पर, साइंस के आधार पर. ये कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड इज मोस्ट सूटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग. यू नो, इन दिस दे से बाय नेचर, टालिन करके एक सब्सटेंस होता है सलाइवा में, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन वेजिटेरियन एनिमल्स. लाइक फॉर एग्जांपल एलिफेंट, हॉर्स, काउ, all these these animals with so much strength, they have a set of their diet is fixed. They are all vegetarians. They don't touch non-veg. So for human system, scientifically, if you see, they say today easily digestible food is what you should. The food you consume should digest within 3 hours. But whereas non-vegetarian food, they say it takes 8 to 10 hours to digest. So from many angles, vegetarian diet is the most suitable. Now, if you ask me to start on meditation, is vegetarian diet necessary? I would say no. Where whatever is your diet, you start meditation,
naturally you will become vegetarian. In Art of Living, we never impose to anyone to change their diet, but people start feeling this is more suitable to me, especially vegan diet. It's not only non-veg, but also highly fried foods. और ये जो canned foods होते हैं, and then junk food, all this takes a big toll on our health, big toll on our body. So that's it. थैंक यू गुरुजी। गुरुदेव, मेरा सवाल आपसे है faith. Faith is said to free us, but at the same time, faith can also blind us. Faith sarvapari hai, with all due respect. I come from a different faith, and I am here in front of you because I feel good. It's my 4th day here. This is my first visit to your ashram. I've met you for the first time in my life. But I cannot express in words how you and this entire space has made me feel. So I am forever grateful to you. पर मेरा ये भी मानना है कि स्पिरिचुअलिटी भी अपनी एक जगह रखती है एक इंसान की जिंदगी में. So my question is, how do we create a spiritual path that includes people from all beliefs without creating more walls and divisions? Yeah. That's a very, very relevant question. Spirituality and religion are two different things. I often say religion is like the banana skin, spirituality is the banana. The real substance of all religion is spirituality. But if we just hold on to the skin and forget the real essence of it, then we are at loss. Spirituality kya hai? It is an experience. Religion is from the house we are born, the way we are named, the way we are married, the way we are buried or burned, whatever, cremated. That is a different thing. But the essence of all religion, I would say, is to find inner peace, to find unconditional love, and to make life a celebration. And so, I would say spirituality unites people of all faiths. This is what you see here. We have people of all different faiths and religions and nationalities and mindsets and also ideologies. Here in Bangalore, in the ashram, anywhere in our ashram in the world, you can find people who are communists, who are capitalists, who are atheists, and who are believers. Everyone comes with one idea of we are all one human family and we are all in love with each other. Gurudev, my next question is for the skeptic mind. We know जैसे ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाना हो तो लिफ्ट एलिवेटर की ज़रूरत होती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो किसी व्हीकल की ज़रूरत होती है. वैसे ही अगर साधना करनी है तो गुरु की आवश्यकता होती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि साधना के लिए गुरु के साथ विश्वास की भी ज़रूरत होती है. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर विश्वास किसी के मन में ना हो और गुरु हैं, तो वो इसका रास्ता कैसे निर्धारित करे? और अगर विश्वास ही सबसे बड़ा है तो उसे गुरु के द्वारा विश्वास कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए, विश्वास डेवलप होता है, विश्वास बनता है. हम तो यहाँ सबको यहाँ स्वागत करते हैं. जो नास्तिक है वो भी
यहाँ पर, उनका भी स्वागत है। वो आए, वो अनुभव करें। यू नो, skeptics are okay, but cynicism is counterproductive for any intelligent person. If you are cynical, you are closed. But if you are skeptic, most welcome. Because skeptics can really have the contrast of experience. तो अनुभव से फिर विश्वास बनता है। इसलिए पहले विश्वास है या पहले अनुभव है? मैं कहूँगा पहले अनुभव, बाद में विश्वास। यही वैज्ञानिक है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पाश्चिमात्य देश में कहते हैं पहले विश्वास करो फिर अनुभव होगा। इसलिए साइंस और वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी में हमेशा टक्कर रहा। यहाँ क्या कहते हैं? पहले अनुभव करो, तुम्हें पसंद आए, तुम्हें लगा तो विश्वास करो। इसलिए भारत में कभी भी किसी वैज्ञानिकों को कभी हमने उसको फांसी पे नहीं चढ़ा। वैज्ञानिकों को आदर किया। ऑलवेज साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया, दे वेंट हैंड इन हैंड, बिकॉज it is against all sorts of blind faith or what you call irrational things. So rational में जाना आवश्यक है, मगर उसके पार भी जाना उससे भी आवश्यक है। गुरुदेव, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने हमेशा सुना है अच्छा करो अच्छा फल मिलेगा। हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज़े रखते हैं, व्रत रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि अच्छा होगा, इससे सब अच्छा होगा। पर मैंने अक्सर बचपन से जब से होश संभाला है, मैं अक्सर ये चीज़ सोचती हूँ, बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर इन कर्म। आई बिलीव इन कर्मा। जिसने ये सृष्टि बनाई, ये ब्रह्मांड बनाया, क्या सच में उनको इन छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ता होगा? क्या उनके पास इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का समय होगा जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है? या फिर बस ये हमारा एक क्रिएटर कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये तो बहुत आसानी सिंपल सी बात है। जैसे बोते हैं वैसे फल पाते हैं। इसके लिए कोई भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास आम का बीज है, आम का बीज बोए तो आम ही आएगा। नीम का बीज बोएगी तो नीम का वृक्ष ही आएगा। जैसा करनी वैसा भरनी। इसलिए देखिए, जैसे जैन फिलॉसफी है, वो बहुत कर्म पर विश्वास करती। वो कोई भगवान का विश्वास नहीं करता, पर वो कहते हाँ संतों का विश्वास करते हैं, गुरु का विश्वास करते हैं, अरिहंत माने आचार्य का विश्वास। क्यों? वो रास्ता दिखाते हैं। अच्छा भाई, तुम अच्छा बुरा कर्म ये तो होता रहता, मगर इससे एक कदम ऊपर चढ़ के देखो, तुम साक्षी हो, इन सब के तुम साक्षी हो, तब एक शाश्वत शांति भीतर से आ जाती है। इसलिए वो कहा है। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न है कर्म से रिलेटेड ही। हमने अक्सर सुना है, गीता कहती है कि कर्म करो, और साथ ही हमें ये भी सिखाया गया है कि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है, किस्मत है, और उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि कर्म करे ऐसी सिचुएशन में, या तो सरेंडर ही कर दें। अच्छा, अब देखो भाई, हम कहते हैं आपको रोशनी आना हो, सनलाइट घर के अंदर सूर्य की रोशनी आना हो तो खिड़की खोलो। पर हम रात को 12 बजे खिड़की खोल करके कहे, गुरुदेव आपने कहा खिड़की खोलो, खोला था रोशनी नहीं आया, क्या मैं बोलूँगा? सब्र करो। ये जीवन जो है
डेस्टिनी और फ्री विल का कॉम्बिनेशन है। ये नहीं कह सकते सभी डेस्टिनी है या सभी फ्री विल है ना। जैसे आपका कद, आप कितने हाइट क्या है आपका? 5'10". हाँ, अब 5'10" है, 5'10" तो 5'10" ही रहेगा पूरा जीवन, वो तो बदल नहीं सकता। मगर आपका वेट कितना है? काफी है। नहीं, इतना वेट तो नहीं दिख रहा आपको, जो भी है कोई बात नहीं। आपका 80 किलो मान लो, वही है ना? जी। आप 80 हो, आपको 90 करना हो तो हो सकता है। आप 2-4 वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दो अपने डाइट में, कुछ और खा लो, कुछ ज़्यादा मिठाई खा लो तो वेट बढ़ जाएगा। घटाना हो तो घटा सकते हो, ट्रेडमिल में खड़े हो जाओ और थोड़ा एक्सरसाइज करो तो कम हो जाएगा। तो हमारा वेट हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, मगर हाइट तो नहीं कर सकते ना। ऐसे अभी बारिश हो रही है तो आप भीगो या ना भीगो ये आपके ऊपर है। छाता लेके जाओ, रेनकोट लेके जाओ तो नहीं भीगोगे, वैसे जाओगे तो भीग जाओगे। सो कुछ हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं, कुछ हमारे हाथ से नहीं है, वो हम डेस्टिनी कहते हैं, है ना। जीवन हमेशा इन दोनों का मिक्सचर है, समावेश है। धन्यवाद। Thank you, Guruji. Gurudev, in this fast-paced world of overloaded information and social media, हमने ना एक पैटर्न देखा, एक पैटर्न इमर्ज हुआ है। फ्रॉम डिप्रेशन टू ड्रग्स टू सुसाइड्स आजकल बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा। एडल्ट्स में स्पेशली यंगस्टर्स, कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, सीधा सुसाइडल हो जाते हैं। So, how do we save ourselves from such issues? What needs to be done? You know, if you are thinking only about yourself, if you sit and what about me, what about me, what about me, this is the mantra to get depressed. You wake up and see. You know, I give a call for all those who have this slightest tendency of suicide. Know that there are many people who are dependent on you. At least start thinking about them. I'm telling all the young people, if you commit suicide, you know how your mother, your father, those people, Yes. your brothers, your sisters are, you are putting you in deep misery, deep sorrow. Is it right for you to do that? This is what we must ask them to see. And next thing I would say, they must do meditation. You know why you have even this feeling? हमें क्यों ऐसा भाव आता है? ताकि हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो जब सिकुड़ता है हमको दुख का अनुभव होता है, और सिकुड़ता है तो डिप्रेशन, और सिकुड़ता है तो सुइसाइडल टेंडेंसी होती है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर को विकसित करना चाहिए। यही प्राणायाम क्रिया मेडिटेशन करता है। 2 दिन में आपको उसका अनुभव में आ जाएगा। देखिए हमारा आपका अनुभव क्या है? जब खुशी होती है आपका अनुभव क्या है? आपके भीतर से कोई चीज एक्सपैंड हो रही हो, यही है ना अनुभव। दुख होता है तो क्या होता है? As though something is crushing. You feel that something inside you has shrunk. You are crushed. तो ये क्या चीज है तुम्हारे भीतर विकसित होने से खुशी, श्रिंक होने से दुख लगता है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसको हैंडल करने के लिए ब्रीदिंग है, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, आप ऐसे झट से उससे बाहर आ जाओ। यस गुरुदेव, मैं बिल्कुल आपकी ये बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट आज ही मैं आपके 2 छोटे छोटे बच्चों से मिली जो इंट्यूशन प्रोग्राम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई रियलाइज्ड that how important it is for every parent to introduce their children to intuition programs. So, yes, I completely agree with you. गुरुदेव,
A similar issue is love, because at the end of the day, love is responsible for a lot of things. We often say love is divine, but so much harm also has been done in the name of love, whether it's battles, wars, all sorts of violence. My question, Gurudev, is what sort of love is actually divine? And is there actually something called a true or worthy love? And what about those? This is very important that I want to ask you. What about those who don't believe in love and for them hate or evil comes naturally? You know, they can naturally be evil or hate people and even spread it. How to deal with such people? Yeah. Let me tell you, you know, not a single child has come onto this planet as hateful child. आप बच्चों को देखिए, उनके आंखों में देखिए, प्यार ही प्यार है. Every child has come into this planet as a bundle of joy. A bundle of joy and bubbling enthusiasm. Due to circumstances and due to the impressions of events, they get distorted. You know, hate is nothing but love standing upside down. Love is twisted and becomes hatred. You know, all these negative emotions are nothing but distortion of love. Love plus knowledge leads you to bliss. Love plus ignorance leads you to all this sort of anger, jealousy, hatred. ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है. मगर प्रेम अपना स्वभाव है, स्वरूप है. जैसे your body is made up of amino acid, carbohydrate, proteins. आपकी चेतना जो है, it is made up of love. Yeah. So Gurudev, have you ever experienced love yourself? मेरा भी सेम सवाल था, एक पर्सनल सवाल है, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? मैं तो प्रेम में रहता ही हूँ हमेशा. Personal प्रेम. ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रेम में पड़ गए. अक्सर लोग बाबा बन जाते हैं जब उनका प्यार का जीवन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ टूट जाता है, कोई दिल तोड़ जाता है, तो फिर वो टूटे हुए दिल को लेके अध्यात्म में चल पड़ते. ऐसा मेरा कभी कुछ नहीं हो. तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे सबका जो टूटी हुई दिल को जोड़ता रहता हूँ. इसलिए हम कहता हूँ आप यहाँ पर हार्ट को रिपेयर कर लेते हैं, आप फिर स्वस्थ होके चल पड़ेंगे. थैंक यू गुरुदेव. जाने से पहले मैं सीपी नीनू जी से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार वो कुछ कहे. आई जस्ट पास ऑन द माइक टू हिम. हमारे बीच में वी हैव सीपी गुरनानी. सीपी गुरनानी इज अ फॉर्मर सीईओ एंड एमडी ऑफ टेक महिंद्रा. ही इज चेयरमैन ऑफ IIM नागपुर and also he is a former chairman of NASSCOM and a great IT leader of the country. सॉरी, आप सवाल पूछे उसके पहले मैं चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस आपने आज आश्रम में फील किया आप वो भी शेयर करें. और सिंपल भाषा में मैं अगर गुरनानी साहब के बारे में कहूँ तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं जो एक लेजेंडरी शख्सियत है, आप फाइनेंस वर्ल्ड के मिस्टर बच्चन हैं. ये मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो. गुरुदेव, आज से पहले एक बार पहले भी आपसे मिलने का मौका मिला था. तब रोहित जी ने मेरे को आपसे दिल्ली में मिलवाया था और मैं यही कहूँगा कि उस दिन की मुलाकात was more mechanical because जो मैं यहाँ आने के बाद फील किया, यहाँ आने के बाद में एक एक कार्यवाहक को कहूँ या वॉलंटियर्स कहूँ या
जो सेवक कहूँ या एक तरह से एक ओनरशिप कहूँ जो लोगों में थी, उससे जो फीलिंग आई, तो मन में सिर्फ एक ख्याल आया, इतनी पॉजिटिविटी, इतना एंथुसियाज्म और इतना डिजायर टू ब्रिंग इन सोसाइटल चेंजेस अगर कॉरपोरेशंस में आ जाए तो हम पता नहीं कहां से कहां पहुंचेंगे। और जब ये मैडम प्रेम की बात कर रही थी, मैं तो जब गौशाला गया तो मैंने तो वहां गायों में प्रेम देखा। तो गुरुदेव, सिर्फ दिल में एक जरूर ख्याल आया जब वो श्रेया जी ने 3 बच्चों को वो इंट्यूशन वाला डेमो दिखवाया, जिसमें वो किताब पढ़ रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि बॉल कहाँ गिरेगी। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था जिसका जवाब दिया नहीं, कि जिन लोगों का हम जैसी उम्र में, जब ये बोले ना अमिताभ बच्चन, जब भेजा फ्राई हो जाता है तो उसको कैसे रिजुविनेट करते हैं।